Yeah. So Purvi, you can start. If you are here, you can start this session. I hope you are available. Good evening, all of you. How are you guys? I hope you're keeping well and you're able to see me. I hope I'm audible. Great. Okay, so this class is going to be about how to write a perfect resume and land into a job that you deserve. All right. I happen to know from Mr. Akash that you have had several resume sessions on this, and we'll just do a quick recap on how to write a perfect resume, how to write a perfect roles and responsibilities part for your resume. And we shall begin that without wasting our time, because I know you guys have been waiting for a long time. And I hope you have your pen and books ready. Right? Great. So please allow me to share my screen and we shall begin the session. Akash, can you please tell me if my video is visible or if there is anything wrong with the Yes, audio? everything is perfect. Everything is perfect. I hope you're able to see the chat section. I am able to. Chalo, perfect. You can continue. And everyone, please make sure this session is very important because आप resume के ऊपर काफी चीजें सीख चुके हो. So today is the last session on resume. हर चीज ध्यान से समझना, कोई भी पार्ट मिस मत करना प्लीज, और कॉपी पेन पे नोट करते जाना. इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा. एक बहुत अमेजिंग पीडीएफ है जो कि पूर्वी ने बहुत हार्डवर्क से आप लोगों के लिए रेडी किया है. बट उससे पहले जो कंसेप्ट है वो आप लोगों ने ध्यान से समझना है. ओके एवरीवन, जस्ट लिख दो चैट बॉक्स में. चलो, perfect. Okay. All right. Thank you for doing this part for me, Akash. I'm really thankful to you. Yeah. Let's go ahead and do our session. We shall first understand what all things we are supposed to write in our resume and what all we are not supposed to write, right? So considering the kind of format that we are working on, which is ATS friendly, I like to introduce all of you to what is an ATS friendly resume in the first place. An ATS friendly resume is something which can be put in a software which is called ATS, that is applicant tracking system. Once you put that software in the applicant tracking system, right, आप एक बार वो सॉफ्टवेयर अगर एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में डालते हैं, उसके बाद वो उसके पॉइंट्स चूज करता है. तो एप्लीकेंट ट्रैकिंग जो आपका रेज्यूमे होता है उसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, जैसे कि उसके फॉन्ट्स होते हैं, उसकी फॉन्ट की साइज होती है, उसकी अलाइनमेंट होती है, वो सब आपको ध्यान में रखनी होती है, राइट? So considering India, we put our pictures in our resume, but honestly it's not required. right? आपके फेस की या आपके पिक्चर की जरूरत नहीं होती है. हम इंडिया में डालते हैं because you know we have started following this norm, we have made this as a fashion statement and things like it. लेकिन वैसे देखा जाए तो इसकी जरूरत है नहीं. Got it? And we begin it with our name, right? आप कोई भी चीज बिगिन करते हैं तो आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालते हैं, राइट? तो वो हेडिंग ही आपका नाम है. Are we all clear about this? I hope we are. Right? Okay. Let's go and see what kind of resumes we will be making. I hope you guys can see my screen. Okay. Perfect. So this is what it is. We will learn whether you, so there are different types of resumes that we create, right? There are chronological resumes. There are resumes in which you can, you know, put your things very nicely, like skill-based resume. And then there is combination resume,
तो आप लोग जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि यूजुअली आप फ्रेशर्स हैं, बाकी सब जो हैं जिनको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे ही एक ऐसा रेज्यूमे है जो बेस्ट हो सकता है, राइट? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर रेज्यूमे फॉर्मेट एंड फॉर जॉब सीकर्स हु हैव अ रेलेवेंट एक्सपीरियंस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स में हो, राइट, तो आपके पास कितने साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है वो आप डाल सकते हो इसमें। आर वी ऑल क्लियर अबाउट दिस? दिस इज हाउ अ क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे इज बिल्ट फॉर। उसके प्रोज हैं कि ये रिक्रूटर्स को यूजुअली इजी होता है समझना, करियर एडवांसमेंट्स को हाईलाइट करता है और जॉब एक्सपीरियंस को एम्फोसाइज करता है। इसके कॉन्स ये हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट में आपके अगर गैप है या आपने करियर ब्रेक लिया तो ये भी ये शो कर देगा, पता चल जाएगा कि आपने लिया है, राइट? आपकी स्किल्स और एबिलिटीज पे इतना फोकस नहीं करता, लेकिन अगर आप उसे इस तरीके से टेलर करेंगे कि आपकी स्किल्स और एबिलिटीज पे फोकस करे, तो आप इसे उस तरीके से भी बना सकते हो, राइट? Okay, now we go to skill based resume. This is usually good for people जिनको ना जिन्होंने एक ही स्किल को मास्टर करके आगे बढ़े हो, राइट? जैसे अगर आप डेटा एनालिसिस में हो, आप उसी को मास्टर करके अगर आगे बढ़े हुए हैं, तो आपके लिए ये स्किल बेस्ड रेज्यूमे बहुत अच्छा है, राइट? रिक्रूटर्स को ये वैसे कम पसंद आता है, लेकिन अगर हाँ आप एक स्किल को मास्टर करके आगे करवाना चाह रहे हो तो दिस इज द बेस्ट फॉर यू। आर वी ऑल क्लियर? ओके, नाउ वी कम टू कॉम्बिनेशन रेज्यूमे, जिसकी आप लोगों को जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती है। एनीवे यू विल बी गिवन दिस पीडीएफ सो यू कैन गो थ्रू इट, राइट? सेकंड होता है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनल डिटेल्स, राइट? ये चीजें होती हैं जो आपके रेज्यूमे के टॉप पे होनी चाहिए। आपका नेम, फोन नंबर, लोकेशन, ईमेल एड्रेस और लिंक्डइन का प्रोफाइल यूआरएल, राइट? लोकेशन मतलब आपको अपने घर का पूरा एड्रेस नहीं डालना है, पोस्टल एड्रेस, राइट? यू जस्ट हैव टू राइट द सिटी, स्टेट एंड द पिन कोड। आर वी क्लियर? यूजुअली आप अपना नेम लिखते हैं, नेम के नीचे फोन नंबर, उसी के पास एड्रेस और लिंक्डइन की प्रोफाइल, आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल होता है उसकी यूआरएल डालते हैं। लोकेशन में जैसे अगर मैं अहमदाबाद से हूँ तो मैं अहमदाबाद इंडिया ही लिखूंगी सिर्फ, राइट? ओके, जैसे मैंने बताया कि हम इस तरीके से लिखेंगे नाम। दिस इज एन एग्जाम्पल। इधर आप अपना नाम लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल पूर्वी गोल्शा, अहमदाबाद इंडिया, माई पिन कोड, माई नंबर, माई ईमेल आईडी एंड माई लिंक्डइन यूआरएल। आर वी क्लियर? Okay, this is our do's. Include your full name, and if you have a middle or initial name, you should add that as well, right? और अगर आप अपना लिंक्डइन आईडी भी उसी से बनाएंगे then it's very very nice, right? अगर आपका कोई अनयूजुअल नेम है या मिसप्रोनाउंस हो जाता है तो आप एक फोनेटिक स्पेलिंग भी डाल सकते हैं, right? You don't need to include your full address. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पूरा एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, पोस्टल एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, राइट? इंक्लूड अ लिंक टू योर प्रोफेशनल वेबसाइट और ऑनलाइन पोर्टफोलियो इफ यू हैव वन। अगर आप फैशन डिजाइनर हैं, राइट, अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, अगर आप कंटेंट राइटर हैं, तो आपको यूजुअली आपके पोर्टफोलियो की लिंक भी डालनी चाहिए। आर वी क्लियर? डोंट नेवर इंक्लूड योर वर्क फोन नंबर, ओनली अ पर्सनल नंबर। अगर आप अपने वर्क का फोन नंबर ऐड करेंगे और आपके वर्क वाले कॉल मोबाइल पर आपको फोन आएगा, देन इट्स डिफिकल्ट, राइट? आपको हमेशा अपना पर्सनल नंबर ही डालना है, राइट? डोंट इंक्लूड मोर देन वन फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। इससे क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं एचआर मैनेजर्स जो होते हैं, उन्हें पता नहीं होता किस नंबर पे कॉल करना है। तो आप जिस नंबर पे हमेशा अवेलेबल होते हो, आपको वही नंबर डालना है, राइट? जब तक जरूरत नहीं है डेट ऑफ बर्थ डालने की, मतलब आपको जरूरत नहीं लगती, तब तक आप डेट ऑफ बर्थ ना डालें। उसकी कोई भी एचआर को जरूरत नहीं होती, राइट? डोंट यूज अ क्वर्की और अनप्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, ठीक है? जैसे मतलब आपने हो सकता है 10th में कभी ईमेल आईडी बनाई होगी xyzhappy@gmail.com। ऐसा जरूरी नहीं है, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को अपने लिए बनानी होगी तो मेरी है purvigolsha@work@gmail.com, राइट? इस तरीके से आप एक अपनी प्रोफेशनल आईडी भी बना सकते हो। आर वी क्लियर? Okay, let's go to the next part. Unless required, a headshot is unnecessary. How you look is not important and a photo takes up valuable space on your resume. जैसे कि हमने बात की पहले कि हमें फोटो डालने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर आप मॉडलिंग वगैरह कर रहे हैं तो शायद एक फोटो या पोर्टफोलियो डालेंगे तो भी उसमें काम हो जाएगा, राइट? लेकिन यूजुअली फोटो डालने से आपका जो रेज्यूमे की जगह है वो यूजुअली ले ली जाती है, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड।
If you use outdated email services like Hotmail, Yahoo, etc., then consider making a free one from your Gmail account for your job search. Usually Gmail IDs जो होती हैं उस पे HRs को reach out करना easy हो जाता है. So it's better कि आप एक Gmail account से अपनी ID बना लें. Are we clear? Okay. Step 3, write a standout resume headline. आपकी LinkedIn में जो headline होती है, for example, building Asma careers, या for example, working at XYZ, right? वो आपकी एक headline होती है. तो आपकी headline है जो है, वो usually आपकी profile किस तरीके से stand out हो रही है ये बताती है. Are we clear? तो हमें एक अच्छी headline कैसे लिखनी है? जैसे ये देखो, Human Resources Manager with 5 years experience leading HR teams. ये एक हेडलाइन है, राइट? आगे देखते हैं. If you don't have any experience or are applying for an entry level job, you can use the resume headlines to show off your soft skills, your proficiency with tools or your winning personal attributes, right? अगर अब आप एक फ्रेशर हैं तो आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, राइट? इसी हेडलाइन को हम प्रोफेशनल समरी भी बोलते हैं. Are we clear? हाँ, हम बात कर रहे हैं अभी, राइट? Do's and don'ts. Always tailor your headline to each job you apply for. ठीक है, एक रेज्यूमे आपके हर एक जॉब के लिए काम नहीं करेगा, राइट? कभी आप कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करो, कभी आप सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो एक रेज्यूमे है वो हर टाइम काम नहीं करेगा. तो हमेशा आपको अपनी हेडलाइन टेलर करनी है, राइट? यूज टाइटल केस, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड यूज अ बोल्ड और स्लाइटली लार्जर फॉन्ट सो दैट हेडलाइन स्टैंड्स आउट विजुअली, राइट? आपका हेडलाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रेज्यूमे का, तो उसको आप थोड़ा सा बाकी सारे फॉन्ट से ज्यादा बड़ा रख सकते हो. नहीं तो आप जो है कैपिटलाइज भी कर सकते हो हर एक जो फर्स्ट लेटर होता है हर एक वर्ड का, राइट? Position yourself as an expert in your field. This can help to set you apart from other candidates who may not be as confident in their abilities. अब आपकी जो स्किल्स है आपको उन्हें फ्लॉन्ट करना है. अभी क्लियर? आपकी जो स्किल्स है आपको ऐसे बताना है कि आपके पास ये जो स्किल्स है वो बहुत कम लोगों के पास है. आपको ऐसी स्किल्स मास्टर करनी है जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स. हर कोई अपने रेज्यूमे में लिख तो देता है, लेकिन क्या आपके पास सच में है? क्या आप सच में मास्टर कर रहे हो कम्युनिकेशन स्किल्स? इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू आंसर योरसेल्फ, राइट? यूज अटेंशन ग्रैबिंग एक्शन वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, above uses leading मतलब आप एक टीम लीड कर रहे हो, राइट? आर वी क्लियर? Okay. Be specific. Generic phrases like hard worker or team player are nice, but they don't tell employees anything. For example, अगर आप communication skills लिख रहे हो, hard worker, team player, right? ये सारे buzzwords होते हैं. अगर आप ATS में डालोगे तो अपने आप बता देगा कि these are the buzzwords and these are something that we don't need to use. आपके resume के जो points होते हैं वो कम होते जाते हैं ऐसे words use करने से, right? So include a specific accomplishment or skill that makes you stand out from the rest. फिर है don'ts. Don't make it too long. अगर आप अपनी हेडलाइन बहुत बड़ी बताएंगे तो आप कोई भी नहीं पढ़ेगा और रीडर का अटेंशन हट जाएगा उस पर से, ठीक है? तो मेक श्योर कि जो आपकी हेडलाइन है वो 10 से 12 वर्ड से ज्यादा की ना हो और उसमें एक पंच हो. ऑलराइट? Avoid using a jargon. Stick to language that can be easily understood by everyone. Jargon एक ऐसी चीज है जो हम रोज भी जैसे रोज की भाषा में हम यूज करते हैं, जैसे कि स्लैंग, राइट? ऐसा कुछ तो डोंट यूज दैट. फिर है डोंट बी टू सेल्सी. ठीक है, आपको बहुत डेस्परेट नहीं साउंड करना है, ना ही मतलब ऐसा भी नहीं साउंड करना कि आप में स्किल्स नहीं है. यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड क्रिस्प अबाउट योर हेडलाइन. ठीक है, steer clear of cliches. With so many resumes to sift through, recruiters will appreciate a fresh original headline that cuts to the chase. प्लीज अपना AI मत यूज करना अपना हेडलाइन जनरेट करने के लिए, क्योंकि अगर आप यूज करेंगे तो साथ साथ दूसरे लोग भी यूज करेंगे और अपना पता चल जाएगा कि आपने हेडलाइन बनाने के लिए AI यूज किया है, which will further only disappoint you because HRs do not prefer that. Right. We're coming to step 4, that is add your resume summary statement or resume objective. Okay, पंच हो उसका मतलब ये कि जैसे एक वर्ड आपने ऐड कर दिया जैसे कि लीडिंग, राइट? तो वो एक पंच वर्ड हो गया. आर वी क्लियर? मैंने शेयर किया है आगे, ये रहा का एक एग्जांपल, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर विद 5 years experience leading HR teams. ठीक है, लेट्स गो टू स्टेप 4 नाउ. Add your resume summary statement or resume objective.
राइट। जैसे कि हमने हेडलाइन तो लिख दी, लेकिन अब हम एक अबाउट सेक्शन भी होता है जो लिंक्डइन में होता है, और हम हमारे रेज्यूमे में उसमें ये भी लिखते हैं, उसे बोलते हैं प्रोफेशनल समरी, करियर समरी, जो भी हम प्रोफेशनली यूज करना चाहते हैं, ठीक है। देखो ये बात बहुत सही है, मोस्ट रिक्रूटर्स स्पेंड बिटवीन 6 to 8 seconds ओनली लुकिंग एट अ रेज्यूमे बिफोर दे मेक अ डिसीजन अबाउट अ जॉब कैंडिडेट, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि 6 से 8 सेकंड में आपका जो रेज्यूमे है वो सिलेक्ट हो जाए, आपको उस हिसाब से आपका रेज्यूमे का जो स्टेटमेंट है, समरी स्टेटमेंट भी टेलर करना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब ये कि आपको एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन चाहिए। तो आपका जो समरी स्टेटमेंट है वो एक ब्रीफ पैराग्राफ हो सकता है 3 से 4 लाइन का, या बुलेट पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस या आपने जो अभी तक काम किया है वो मेंशन कर सको। फॉर एग्जांपल ये certified diversity and inclusion specialist, over 5 years experience successfully leading teams of up to 8 HR professionals, right? ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये रेज्यूमे समरीज उन लोगों के लिए जिनके पास काफी वर्क एक्सपीरियंस है, राइट, और वो काफी एक्चुअल नंबर से डेडिकेटेड है, तभी अगर वो कर पाएंगे। इफ यू डोंट हैव मच जॉब एक्सपीरियंस और आर चेंजिंग करियर्स, यू कुड राइट रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इंस्टेड, राइट। तो हमने जैसे बताया कि ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट कि आप आगे करना क्या चाहते हैं इस कंपनी में, आप उस हिसाब से भी टेलर कर सकते हैं। इस तरीके से आपका रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव होता है द जॉब टाइटल और फील्ड यू आर इंटरेस्टेड इन, ट्रांसफरेबल स्किल्स that make you good fit for the position, accomplishments और आपके career goals. Are we clear? Do's. Keep it brief, no more than a few sentences or bullet points. Right? बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आप एक ऐसे नहीं लिख रहे हो, आप अपने बारे में बता रहे हो। Look for patterns in your work history. Anything that you can point to say, this is what I do, this is what I do and I'm good at it. ऐसी कोई चीज जिसके बारे में आपको खुशी हो, that you are proud of, right? Incorporate keywords from job description whenever possible. जो आपको job description मिलता है ना, उस job description में से आप कुछ keywords निकाल के अपने इसमें डाल सकते हो आपकी career objective में, जो आप जिसकी वजह से आपका जो ATS points हैं वो बढ़ जाएंगे। Are we clear? डोंट मेक बोल्ड क्लेम्स दैट कैन नॉट बी बैक्ड अप, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिख दिया कि आप बैडमिंटन में भी अच्छे हो, बास्केटबॉल में भी अच्छे हो, क्रिकेट में भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपको क्रिकेट के बारे में एचआर ने कुछ पूछ लिया और आप नहीं बता पाए, तो उनको पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, एंड दैट विल क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन, राइट। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है जो जॉब के रिलेटेड ना हो, राइट। आपकी सिर्फ जॉब ड्यूटीज मत लिस्ट करो, और उसके सिवा अकम्पलिशमेंट्स भी लिस्ट करो कि आपने जॉब ड्यूटीज तो हमें पता है, लेकिन आपने उसका क्या किया, राइट। पर्सनल प्रोनाउंस आई, मी, माय अवॉइड करो यूज करना। ओके, लेट्स गो अहेड। एड कीवर्ड्स एंड स्किल्स दैट आर ATS फ्रेंडली, जो कि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ATS ATS ATS, बस वही पार्ट पर हम आ गए कि आप ऐसे कीवर्ड्स ऐड करें जो कि ATS फ्रेंडली हो, ठीक है। ये लिखा, when you submit your resume, it won't go to a live human being, it will go straight to a computer database, right? So having right keywords on your resume is important because hiring managers use keywords to search through that ATS database for their best job candidates, right? तो आपके जो रेज्यूमे में है वो सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए, आपके रेज्यूमे में हार्ड स्किल्स भी होनी चाहिए, और हमेशा ध्यान रखना कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स जो है वो पैरेलली चलती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स नहीं, और सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स नहीं, दे यूजुअली गो हैंड इन हैंड। स्टेप 6, डिटेल योर वर्क एक्सपीरियंस। अब आपने वर्क एक्सपीरियंस, सपोज आपके पास 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, राइट, लेकिन आपने वर्क एक्सपीरियंस में सिर्फ अपने कंपनी का नाम लिख दिया, आपकी डेजिग्नेशन लिख दी, कितने साल से कितने साल आपने काम किया ये लिख दिया, लेकिन आपने कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिखी, तो आपके जो HR हैं उनको समझ ही नहीं आएगा कि आपने एग्जैक्टली किया क्या है, राइट। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना मुश्किल हो जाएगा कि आपने उधर जब जो ये काम किया, क्या उसको रिवॉर्ड किया गया था, या इस काम के साथ साथ क्या रिजल्ट इसके आए थे, ये बताना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप जब अपना रेज्यूमे बना रहे हो तब आप ये सारी चीजें अच्छे से मेंशन कर दो, राइट। एक एग्जांपल देखेंगे हम। Each job should have its own subheading, and that includes following: company name and location, include the full name of the company you worked for,
followed by the city and state of its location. Job title, आपका designation क्या था? Start and end dates, preferably month and year, right? Achievements and responsibilities, आपकी responsibilities suppose है कि आपको 50 calls करने, 50 calls से आपने कितने लोगों को वर्ड कर दिया पोटेंशियल कस्टमर्स में, ये एक आपकी अचीवमेंट होती है। तो आपको नंबर्स भी लिखने हैं। अभी क्लियर? ये एक एग्जांपल है, इसे मैं जूम करके बताती हूँ आपको। देखिए फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, उसके साथ उन्होंने लोकेशन लिखा है और ये भी लिखा है कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज और पेरोल मैनेजर थे, जो कि इन्होंने लिखा है मार्च 2016 से प्रेजेंट। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनका फंक्शन क्या था, रिस्पॉन्सिबल किस किस चीज के लिए है वो, और उसके बाद उन्होंने ये भी चीजें मेंशन की है कि उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, साथ साथ उनके अकम्पलिशमेंट्स भी बताया उन्होंने। आर वी क्लियर? आर वी गेटिंग दिस? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, वर्क एक्सपीरियंस। आप अपना वर्क एक्सपीरियंस किस तरीके से हाईलाइट करेंगे, जिसमें आपको अचीवमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों लिखनी है, ठीक है? ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, यहाँ क्लियरली लिखा है, व्हेन दे one of the biggest mistakes people make when writing a resume is only listing their job responsibilities, right? जो तो ठीक है, लेकिन आपने उससे अचीव क्या किया वो भी आपको लिखना है, राइट? तो जैसे यहाँ लिखा है, resolved issues remotely across 2 regions, efficiency by acting as liaison between 20+ agents, right? आपको ये numbers लिखने हैं। Are we clear? तो suppose जैसे अगर आपने दिन के 4 घंटे कॉल्स पे बात की, आपने सेल्स के कॉल किए, लेकिन आपने उनमें से 4 घंटे में से अगर जो भी कस्टमर आपने कोर्स बेचा या वो आपके कस्टमर बन गए, उन्होंने सर्विस लिया, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? Listing your job responsibilities gives a potential employer an idea of what did you do day to day, right? But it doesn't reveal how well you did it. मतलब roles and responsibilities तो हमें भी पता है, लेकिन आपने उसका क्या किया वो आपको करना है, right? Managed a team of 12 people. Managed a team of 12 people consistently meeting or exceeding quarterly targets. सिर्फ मैनेज करने में कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपने मैनेज करने के बाद कंसिस्टेंटली मीटिंग और एक्सीडिंग क्वार्टरली टारगेट्स, ये जब मेंशन किया तब ये बताता है ये कि आपने मैनेज तो किया, साथ साथ में आपने इस चीज का भी ध्यान रखा कि आप अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हो अपनी पूरी टीम के साथ, राइट? तो आप अपनी पूरी टीम को साथ में लेके चल रहे हो। Are we clear? ओके ये देखो, for someone who works in a warehouse might have responsibilities that include stocking shelves, unloading trucks and packaging items for shipment. हो सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ना लगे, लेकिन अगर एक दिन के लिए ऐसे लोग अगर गायब हो जाए तो ये सारा काम ऑफिसर लेवल वाले जो लोग हैं उनको करना पड़ेगा, राइट? तो आपकी हर कोई स्किल जो है वो वैल्यूएबल है, लेकिन आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Are we okay? Let's go to next part. Use action verbs. Responsible for is an action verb. Coordinated is an action verb. Spearheaded is an action verb. Are we clear? Action verbs use करने से क्या होता है कि आप जब ये वर्ड यूज करेंगे ना तो यूजुअली एटीएस सॉफ्टवेयर को समझ में आएगा कि हाँ इन्होंने इस तरीके से कुछ काम किया है, राइट? तो एक्शन वर्ड यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके की वॉइसेस होती हैं, यू एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे कि इसमें है एग्जाम्पल, द कैशियर काउंटेड द मनी, और पैसिव वॉइस में बोला जाएगा द मनी वाज काउंटेड बाय द कैशियर, राइट? तो आपका जो एक्टिव वॉइस है वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग सुनाई देगा, पावरफुल सुनाई देगा इंस्टेड ऑफ पैसिव वॉइस। मैनेज द टीम ऑफ 12 पीपल, कोऑर्डिनेटेड एक्सेट्रा ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा इंस्टेड ऑफ वाज रिस्पांसिबल फॉर अ टीम ऑफ 12। आर वी क्लियर? Akash, are you there? Yes, I'm here. I am getting a review that मेरी आवाज कट रही है। बीच में थोड़ा सा ऐसा होता है, but overall it's good. Nothing to worry about, no?
Yeah. Okay, You can do fine. one thing, Purvi, while sharing screen share, na, you can just turn off your video I'll while do on the that. screen That's share. exactly, Okay? yeah, Yeah. yeah, that's exactly what I was thinking. Okay. ओके, वी आर इन दिस पार्ट यूज नंबर्स। जैसे कि मैंने बताया कि आपने दिन में 4 आवर्स कॉल किया, लेकिन उसमें से 4 आवर्स कॉल करके आपने कितने लोगों की जो सेल्स है, आपने कितने लोगों को ये कोर्स बेचा या सर्विस बेची, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे आप अगर ये एग्जाम्पल देखेंगे, क्रिएटेड 10 सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स लिखना काफी नहीं है, लेकिन क्रिएटेड 10 सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स दैट जनरेटेड अ 20% इंक्रीज इन लीड्स ज्यादा ज्यादा इम्प्रेसिव साउंड करेगा। आर वी क्लियर? नाउ लेट्स सी सम ऑफ दीज। saved rupees 7 million while introducing nationwide transport service for medical patients। अब यहाँ पे आपने cost saving किया है, right? So cost saving is a action verb here, right? Then we have generated a utility income increase of 45% within 2 months by designing and deploying an enhanced bill back process, right? तो आपने यहाँ पे क्या चेंज लाया है? 45% का जो इंक्रीज लाया है इनकम में 2 मंथ्स के अंदर, आपने ये बताया है, राइट? फिर आपका अचीव्ड 150% सेल्स ग्रोथ, राइट? तो आपका जो 150% सेल्स ग्रोथ बढ़ाया है वो आपने इसमें मेंशन किया है, राइट? इस तरीके से आपको एक्शन वर्ब्स यूज करके आपको बताना है। पूर्वी, सॉरी टू इंटरप्टिंग यू गाइस, ये जो चीजें पूर्वी बता रहे हैं इस चीज को ध्यान से सुनो। ये जितने भी पॉइंटर्स है ना, आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लिखना है। ये सिर्फ इसीलिए कि जब रिक्रूटर इन चीजों को देखेगा ना, तो वो इन चीजों को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं और ये चीज आपके सिलेक्शन में बहुत काम करेंगे। आप इसको कुछ हॉट पॉइंट्स बोल सकते हो कि जो इतने अट्रैक्टिव होते हैं तो इसको लगेगा हाँ यार, ये मेरे सामने जो पर्सन बैठे इंटरव्यू देने के लिए कोई ऐसा नहीं है, इसके पास कुछ अचीवमेंट्स हैं। तो वो अचीवमेंट्स को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है वो चीज यहाँ पे पूर्वी समझा रही है। इसलिए इस चीज को कोई ये मत लेना है यार, ये आज क्या इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है, ऐसा नहीं है। हर चीज को ध्यान से समझना प्लीज। आई होप आई एम क्लियर विद एवरीवन। मुझे तो चैट आप लोगों की नजर नहीं आ रही अभी क्योंकि पूर्वी होस्ट है, बट पूर्वी आई होप आप देख पा रहे होंगे जो भी ये yes स्टूडेंट्स yes लिख रहे हैं, है ना? सो एवरीवन एकदम एनर्जी के साथ इस चीज को सीखो। यस पूर्वी, नाउ यू कैन कंटिन्यू। Okay, I hope you have understood, all of you have understood the part where we are supposed to mention a lot of numbers and things like it. Let's do the do's and don'ts part, right? Use traditional section heading like work experience, right? अब उसको where I have been करके ऐसा करके इसे बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ चीजें जो सालों सालों से चलती आ रही है जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस, उसको जैसा है वैसा ही रहने दो, वरना एटीएस को कंफ्यूज कर दोगे, राइट? फिर है राइटिंग डेट्स, मंथ और ईयर वाला फॉर्मेट ही यूज करें जो कि इजीली एटीएस में पास हो जाता है, राइट? जो अपने जॉब्स पास्ट में की हैं उसके लिए पास्ट टेंस यूज करें, जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो उसके लिए प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, ओके? पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं उन्हें हम बाहर रखेंगे, और जो आपका रेज्यूमे है जो आप हर एक स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप उसे टेलर करेंगे, राइट? And this is a very beautiful way of tracking all your job achievements etc. So for example आज आपने अगर 4 घंटे कॉल किया है, आपको पता है कि आपकी लीड्स इसमें से 2 हॉट लीड्स हैं, तो आप अपने स्प्रेडशीट में रख सकते हैं, राइट? और फिर आप उसको फर्दर आगे जाके रेज्यूमे में भी डाल सकते हो। आर वी क्लियर? लेट्स डू द डोंट्स। Don't list more than 10 to 15 years of work experience unless it's highly relevant। ठीक है, अगर आपने 10-15 साल पहले XYZ काम किया है और अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है, राइट? डोंट लिस्ट एवरी सिंगल टास्क यू वर्कड ऑन। अब एज एन इंटर्न, अगर आप मेडिकल में इंटर्न हो तो आपको ऐसा भी बोला जाएगा कि चाय लेकर आओ, समोसे लेकर आओ, तो आपको ये डालने की जरूरत नहीं है। जो आप रेलेवेंट है आपको वही चीजें डालनी है, राइट? Don't use the same tired words responsible for etc. Instead use action verbs written in an active voice। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया जनरेटेड लीड्स, कॉस्ट कटिंग अभी हमने डिस्कस किया, ये सब चीजें आपको इसमें समझनी है, राइट? डोंट लाई और एग्जैजरेट अबाउट योर ड्यूटीज और अकम्प्लिशमेंट्स। अगर आपने लाई कर दिया, अगर आपने झूठ बोल दिया, राइट, और अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन किया गया और आप आंसर नहीं कर पाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, और आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो तो दूर, आपकी कोई इंप्रेशन ही नहीं बचेगी। Are we clear? Showcase your skills, right?
स्किल्स में जैसे मैंने बताया था, आपको हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों टाइप की स्किल्स एक साथ मेंशन करनी है। जरूरी नहीं है कि आप अपने हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स जो हैं अलग अलग मेंशन करो, राइट? आप एक साथ स्किल्स के सेक्शन में अपने हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो हार्ड स्किल्स है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कॉपी राइटिंग, डेटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग। ये सारी जो स्किल्स है वो ट्रांसफरेबल स्किल्स है, राइट? आप इसको किसी को भी आसानी से समझा सकते हो। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स है वो बनती है, आपको उसमें लंबा टाइम लगाना पड़ता है, राइट? सो ये है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, टीम वर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये आपसे ओवरनाइट नहीं बन पाएंगी, राइट? यू विल टेक अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी, राइट? सो ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं आपको इस तरीके से खुद में लानी है, इसे जिंदगी भर यूज करें, ना कि सिर्फ अपने काम में, राइट? दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स हमेशा ही डिमांड में होती है। आर वी क्लियर? जैसे कि ये एक एग्जांपल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैकेनिकल डिजाइन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक्सेट्रा, राइट? ये एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है जिसमें हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों डाली हुई हैं। अभी क्लियर? एड योर एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशंस, राइट? अब सपोज कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस का कोई कोर्स कर रहे हैं, लेकिन आपने साथ साथ में ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग का भी कोई कोर्स किया है, राइट? तो आप उसका सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये वाला कोर्स भी पढ़ रहे हो तो आपको इस चीज का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप इसे भी लिंक्डइन पे डाल के सकते हो, राइट? सो दे विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव ट्रेन फ्रॉम समवेयर एंड यू गॉट अ सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होती है, राइट? ये है एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि मोस्ट जॉब सीकर्स कैन गेट अवे विद प्रोवाइडिंग ओनली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन देयर रिज्यूमे: नेम ऑफ स्कूल, स्कूल लोकेशन, डिग्री एंड ईयर ग्रेजुएटेड, राइट? ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स के बारे में कि अगर आपने कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, इफ यू हैव अर्न्ड एनी ऑफ देम, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जिस जॉब के लिए, उसके लिए अगर वो रेलेवेंट है, तो आपको डेफिनेटली अपने रेज्यूमे में डालना चाहिए। आप अपने एजुकेशन इंफॉर्मेशन के नीचे ही सर्टिफिकेशन का एक नया सेक्शन बना सकते हो और वहां पे अपना डाल सकते हो। अगर आपके पास उस सर्टिफिकेशन के क्रेडेंशियल्स है, दैट इज वे मोर बेटर, राइट? अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं तो आप उस इंपॉर्टेंस में डालो जो आपके लिए रेलेवेंट है सबसे ज्यादा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पीआरओ के लिए, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट? तो आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने कोई कम्युनिकेशन का कोई कोर्स किया है तो वो आपको सबसे ऊपर डालना है। आर वी क्लियर? जैसे कि ये आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये फार्मासिस्ट का रिज्यूमे है। डूज: list your educational achievements in reverse chronological order with your recent most qualifications first. अगर आपने पहले 10th 12th और फिर कॉलेज किया है तो आपको कॉलेज सबसे ऊपर लिखना है, फिर आपका 12th और 10th लिखना है। जो कि 12th और 10th आपको रेज्यूमे में लिखने की जरूरत नहीं। मेरे जो कहने का पॉइंट ये है वो है कि जो अपने रीसेंट मोस्ट आपका जॉब है, जो रीसेंट मोस्ट आपकी पढ़ाई है, वो आपको सबसे ऊपर लिखनी है, और फिर उसी हिसाब से जो आपकी पुरानी है उसको नीचे डाल जाना है, राइट? इंक्लूड एनी रेलेवेंट कोर्स वर्क, स्किल्स ट्रेनिंग, लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, तो ये सब आपको इंक्लूड करना है, राइट? एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं अभी तक परसू, तो आपको एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट लिखनी है, राइट? इंक्लूड एक्स्ट्रा करिकुलर ओनली इफ दे आर रेलेवेंट। अगर आपके पास कोई रेलेवेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है तो वो आप उन्हें ऐड कर सकते हो। अगर आपने अब्रॉड पढ़ाई की है तो इन्फॉर्मेशन डालो उस प्रोग्राम के बारे में कि आपने किया क्या था वहां पे एग्जैक्टली। अगर आपने कॉलेज के 3rd ईयर में कोई प्रोजेक्ट किया है, अपने इंजीनियरिंग के 4th ईयर में कोई प्रोजेक्ट किया है, तो वो प्रोजेक्ट किस बारे में था, इस बारे में भी आप शेयर कर सकते हो, अगर वो एक प्रोजेक्ट हिट हुआ है या कहीं पे सिलेक्ट हुआ है तो। आर वी क्लियर? डोंट मेंशन योर हाई स्कूल इफ यू हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री। जो कि अगर आपने 12th सॉरी आपने कॉलेज की पढ़ाई कर रखी है तो आपको 12th मेंशन करना जरूरी नहीं है, राइट? डोंट डिस्क्लोज योर जीपीए अनलेस यू ग्रेजुएटेड रिसेंटली एंड हैड अ वेरी इंप्रेसिव एकेडमिक करियर। अगर आपने 12th रिसेंटली पास किया है और अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स है तो ही आपको मार्क्स लिखने की जरूरत है, वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं है,
डोंट लाई अबाउट योर एजुकेशन। अगर आप अपने एजुकेशन के बारे में कुछ गलत बोलते हैं और आप आंसर नहीं कर पाए, तो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन की वापस से वही बात हो जाएगी कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा बनना। एडिशनल रेज्यूमे सेक्शंस, ये ब्रैकेट में ओ का मतलब है ऑप्शनल, राइट। आपका एक रेज्यूमे जो होता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है शाइन करने के लिए, राइट। तो आपका है, आपको इस तरीके से बनाना है कि सामने वाला देखकर इंप्रेस हो जाए। तो आप क्या क्या ऐड कर सकते हो? एडिशनल लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, और आपकी रीजनल लैंग्वेज के सिवा आपको और कौन सी लैंग्वेजेस आती है, जैसे कि जापानीज या फ्रेंच, अगर आपको आती है तो आप वो लिख सकते हो। हॉबीज एंड इंटरेस्ट लिख सकते हो, लेकिन उसके बारे में कभी झूठ मत बोला, क्योंकि अगर आपने हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में झूठ बोला और अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन किया गया और आप उसका आंसर नहीं दे पाए, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। पब्लिकेशन, अगर आपने कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई पोएम डाली है या अगर आपने कोई आर्टिकल डाला है, तो आप ये पब्लिकेशन वाले पार्ट में डाल सकते हो। अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं आपके वर्क में या आपकी पढ़ाई को लेकर, तो आप ये सारी चीजें अवार्ड्स में ऐड कर सकते हो। फिर है आपका वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, जैसे अगर आप कभी स्काउट्स में थे या एनसीसी में थे, एनएसएस में थे, किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हो, ब्लड डोनेट करते हो, ये सारी चीजें आप वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस में डाल सकते हो। फिर आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हमने अभी बात की कि अगर आपने कॉलेज के थर्ड ईयर में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है या अगर आपने इंजीनियरिंग करते वक्त कोई प्रोजेक्ट किया है, तो वो आप उन्हें ऐड कर सकते हो। सेम यही चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, लैंग्वेजेस, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, पब्लिकेशंस, अवार्ड्स, इन्हें आप डिटेल में पढ़ सकते हो। यू विल गेट दिस पीडीएफ, दे विल गेट दिस पीडीएफ, राइट आकाश? Sorry, Purvi, can you please repeat? They will get this PDF, right? Yes. Yeah. Okay. Then we have format your resume so it can be easily read by an ATS. वैसे इस PDF में सब कुछ बता दिया गया है कि आपको एक ATS फ्रेंडली रेज्यूमे किस तरीके से बनाना है, लेकिन इधर इसके कुछ डूज और डोंट्स दे रखे हैं जो कि आपको देखने चाहिए। एक ऐसी लैंग्वेज यूज करें जो इजी और अंडरस्टैंड हो समझने को, जार्गन या स्लैंग्स यूज करना बहुत ही मुश्किल हो एटीएस को समझने के लिए, राइट। कॉमन फॉन्ट यूज करो, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, हेल्वेटिका, फॉर ऑप्टिमल रीडेबिलिटी। आपका जो फॉन्ट साइज है वो इजी टू रीड होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा बड़ा ना कि छोटा। रेगुलर टेक्स्ट के लिए 11 to 12 पॉइंट्स और सेक्शन टाइटल्स के लिए 14 to 16 पॉइंट्स, राइट। Make sure the margins on all sides of your resume are 1 inch so that it doesn't look too crowded, right? बहुत ज्यादा गैप भी नहीं छोड़ना है, बहुत कम गैप भी नहीं छोड़ना है आपको। इट शुड बी नॉट मोर देन 1 इंच। एक वर्ड डॉक्यूमेंट यूज करें जब आप एक रेज्यूमे बना रहे हैं। कैनवा, resume.io एक्सेट्रा जो AI वाले टूल्स हैं उन्हें मत यूज करो। थोड़ा सा खुद अपने रेज्यूमे पे वर्क करो, दिस विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, मेक श्योर यू प्रूफ रीड योर रेज्यूमे फॉर मिस्टेक्स बिफोर यू सेंड इट ऑफ। अपना रेज्यूमे कहीं पे भी अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप उसे प्रूफ रीड कर रहे हो, कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का नाम बता रहे हो तो उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो एक्सेट्रा। अभी क्लियर? Jargon is a slang word. Don'ts. पिछली बार जब मैंने ये सेशन लिया था, मैंने काफी सारे लोगों को बोला था कि इसमें टेबल्स ना यूज करें, लेकिन फिर भी उन्होंने टेबल्स यूज किए थे। एटीएस को टेबल्स नहीं समझ में आते हैं, राइट, और इन्फॉर्मेशन जो होती है उसमें वो खो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल आप अपना एजुकेशन एटीएस अपना एजुकेशन टेबल में डाल रहे हो, तो एटीएस अपना एजुकेशन आपका जो है वो कभी समझ ही नहीं पाएगा, राइट। तो टेबल्स मत यूज करो। डोंट यूज अननेसेसरी ग्राफिक्स और एम्बलिशमेंट्स दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर एन एटीएस टू अंडरस्टैंड, राइट। अगर आप सेंट जेवियर्स कॉलेज में थे, तो आपको सेंट जेवियर्स कॉलेज का लोगो लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टेक्स्ट में ही काम चला सकते हो, राइट। इसलिए हमें फालतू के ग्राफिक्स यूज नहीं करने। अगर आपको बुलेट पॉइंट्स भी यूज करना है तो ये डॉट वाले जो है वो बेस्ट है, राइट। डोंट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स दैट एन एटीएस माइट मिस इंटरप्रीट, राइट। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है, तो आपका जो एटीएस है उसे मिस इंटरप्रीट कर लेगा। Don't make your resume longer than 1 page unless absolutely necessary. अगर आपके पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, उससे ज्यादा टाइम का एक्सपीरियंस है, तभी आपको आपका रेज्यूमे 1 पेज से ज्यादा बना सकते हो, वरना आपको उससे ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। अभी तो यूजुअली आप सभी लोग फ्रेशर्स हो, तो आपको रेज्यूमे 1 पेज का ही बनाना है। अभी क्लियर? क्वालिफिकेशन हो चाहे एक्सपीरियंस हो, कुछ भी टेबल में नहीं देना है।
फिर है कवर लेटर। कवर लेटर यूजुअली एक पर्सनलाइज्ड मैसेज होता है, आप जहाँ कहीं भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। आप एचआर मैनेजर को एक पर्सनलाइज्ड लेटर लिख के देते हो कि आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए, और आप ये भी बताते हो कि आप इस जॉब के लिए एक राइट फिट क्यों हो, राइट। जो बेस्ट कवर लेटर्स होते हैं वो यूजुअली एक पेज बड़े होते हैं, और जो मैसेज जो होता है वो काफी क्लियर होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, राइट। तो ये कवर लेटर होता है। यूजुअली आप एक हर जब आप अप्लाई करते हो तब वो बोलता है एड अ सीवी, तो दिस इज व्हाट इट इज। कवर लेटर का गाइड है इसमें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड योर फुल नेम, एड्रेस इंक्लूडिंग योर जिप कोड, फोन नंबर, एरिया कोड, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑन अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर कवर लेटर। ग्रीटिंग्स, आपको किसी को भी डियर या रिस्पेक्टेड करके ही बात करनी है, डायरेक्टली आपको उनका नाम नहीं लिखना है। ओपनिंग, थिंक ऑफ एन ओपनिंग सेंटेंस एज योर चांस टू ग्रैब एचआर मैनेजर्स अटेंशन एंड गेट देम एक्साइटेड टू लर्न मोर अबाउट यू, राइट। आप ये एक, आपको जो ओपनिंग है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। फिर है आपका बॉडी, कि इसमें आपको अपनी तारीफें करनी है इस तरीके से कि मतलब आप जो बता रहे हैं इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन, right? The best way of doing this by providing examples of your measurable accomplishments. These are powerful because they show tangible proof of our abilities. Are we clear? फिर है आपका closing section. This section should be this section should be used to thank the HR manager for the time कि उन्होंने इतना सारा CV जो आपने लिखा वो उन्होंने पढ़ा, इसके लिए ये वाला सेक्शन आपको यूज करना चाहिए, राइट। और उसी समय आप चाहें तो आप अपने अटैचमेंट्स वहां पे डाल सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट, पोर्टफोलियो या सैंपल्स। ओके, यू डोंट हैव टू साइन टू ईगर और ऐसे बहुत ही ज्यादा सेल्स ही नहीं साउंड करना है, वरना रीडर को लगेगा कि आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो, राइट। यू डोंट हैव टू मेक देम फील दैट वे। कुछ कीवर्ड्स यूज करो, राइट। सेम कीवर्ड्स जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन में देखे थे या रिज्यूमे बनाते वक्त देखे थे, वही आप इस कवर लेटर में भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो एचआर है वो इम्प्रेस हो जाए। आर वी क्लियर? ओके, वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। एक कवर लेटर जो है वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जब आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो। आपके जो एचआर मैनेजर्स हैं उनको बताता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं, आप कितना एक्स्ट्रा माइल काम कर सकते हो, एक्सेट्रा, राइट। तो अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे सीवी लिखने के लिए तो यू विल बी डूइंग अ गुड जॉब। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है मैंने ऐड किए हैं। रिमेंबर टू थरोली प्रूफ रीड योर रेज्यूमे एंड कवर लेटर। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तब आपके पास गुंजाइश नहीं होती कि आप गलती करो, राइट। तो आपको आपका रेज्यूमे और कवर लेटर बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनाना होता है। Proofreading is one of the important things that you can do before sending off your job application. A single typo or mistake can make you look unprofessional and could cost you the job. हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया आपके रेज्यूमे में या कवर लेटर में तो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट दैट जॉब। हो सकता है उसकी वजह से आपको इंटरव्यू कॉल भी ना आए। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके लिए आप ग्रामरली वाला एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, जो ऑनलाइन प्रूफ रीडिंग टूल है, इट्स फ्री। तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं उन्हें भी पूछ सकते हो, राइट। Remember, sending your resume off without carefully proofreading could spell disaster. Be sure to take the time to update your resume and review it for typos and errors. It could make all the difference, right? जो अभी हमने बात की कि आपका सारा जो डिफरेंस है वो आपके CV से हो सकता है, right? Now I'll be taking questions if you have any. And guys, just one more request, आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे मेक श्योर जो आज टॉपिक सिखाया गया आपको रिज्यूम का, आप उसी से रिलेटेड पूछना, क्योंकि आप अदर टॉपिक से रिलेटेड पूछेंगे वो कंफ्यूजन हो जाएगी, धीरे धीरे टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप जो भी डाउट पूछ रहे हैं प्लीज मेक श्योर वो आपका जो रिज्यूमे से रिलेटेड पूछ। I'm taking the doubts now. आप जो चीजें कवर हो चुकी हैं इस पीडीएफ में उससे ना पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कवर लेटर रेज्यूमे के साथ ऐड करना है, जरूरी नहीं है, आपको बताया जाएगा आप जिस वेबसाइट पे अप्लाई करोगे उधर। Should we write both hard and soft skills? Yes, hard skills and soft skills go parallel to each other and you have to write both of them.
नहीं, डिक्लेरेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैंने डिक्लेरेशन का जिक्र किया है इस पीडीएफ में। अगर आप फ्रेशर हैं तो एक्सपीरियंसेस में क्या लिखेंगे? आपने इंटर्नशिप किया है तो आप वो लिख सकते हो। हाँ, अगर आप टीचर है तो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस ही मेंशन करना होगा। तन्मय, सैंपल रेज्यूमे आप वेबसाइट से ले सकते हैं। अगर आपने कोई इंटर्नशिप नहीं किया तो आप ध्यान रखें कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है या एनजीओ में किसी के साथ आपने कुछ हेल्प की है, अगर आपकी कोई स्किल्स है जिन्हें आपने मास्टर किया है तो आप वो ऐड कर सकते हो। मोहम्मद, फॉर दैट यू नीड टू गेट इन टच विद मी पर्सनली। 3 months ऑफ एक्सपीरियंस आप एज एन इंटर्नशिप बता सकते हैं। 4 month का एमएनसी का एक्सपीरियंस है, आप बता सकते हो, लेकिन आपको ये भी आंसर करना पड़ेगा कि आपने 4 month में क्यों छोड़ दी वो जॉब। सो बी क्लियर अबाउट इट। Krishna, if your English is not that good, take some help with your friends, family members or mentors. करियर गैप आप कैसे हैंडल करेंगे? आप ये बोल सकते हो कि आप पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या ऐसा कुछ, आपका करियर गैप हैंडल हो जाएगा। ऑनलाइन रीसेलिंग का काम हो तो क्या लिखें? ऑनलाइन रीसेलिंग इज एक्चुअली कोई इसकी कोई पोस्ट नहीं होती, सो आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू विद दिस। फ्रेशर लोग अचीवमेंट्स में क्या लिखेंगे? अच्छा, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है, आपने कोई क्विज में पार्टिसिपेट किया है, आपने कोई कोर्स किया है तो आप वो लिख सकते हो। सर्टिफिकेशंस ऐड कर सकते हो। इफ आई डोंट हैव सॉफ्ट स्किल्स एंड व्हाट कैन आई ऐड इन? एवरीबडी हैज सॉफ्ट स्किल्स। सुष्मिता, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कौन सी स्किल्स है। फिर भी नहीं पता चल पा रहा तो अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, उनसे पूछो कि आप में क्या क्या स्किल्स है, वो बता देंगे। I have a doubt. I've volunteered as daycare teacher for 4 years. Can I mention it as an experience even if I'm? अगर relevant है तो आप डालो, वरना मत डालो। हरिणी, 2 days workshop on power by mention कर सकता हूँ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपको इस चीज का नॉलेज है तो कर सकते हो। बीटेक किया है लेकिन टीचिंग एक्सपीरियंस है, चलेगा, ऐड कर सकते हो टीचिंग एक्सपीरियंस। फ्रेशर है, कोई इंटर्नशिप नहीं किया तो अभी मैंने बताया, प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस ऐड कर सकते हो, लाइसेंसेस ऐड कर सकते हो, अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हो, राइट? कवर लेटर इज इन पीडीएफ फॉर्मेट, वी डायरेक्टली राइट इन ईमेल। डिपेंड करता है श्रुति किस तरीके से उन्होंने मांगा है। सर्टिफिकेशन मेंशन करना है या नहीं, आप एक बार पीडीएफ देख लेंगे आशुतोष, इट विल हेल्प यू बेटर। किसी भी प्रोफाइल में अप्लाई करते वक्त टाइम टीचिंग का एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, जो एक्सपीरियंस रेलेवेंट है वही डालना है। फ्रीलांसर हो आप फिर भी डाल सकते हो रेज्यूमे में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप फ्रीलांसिंग क्यों कर रहे थे, फुल टाइम जॉब क्यों नहीं ले रखी आपने। यू हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस बट फ्रॉम लास्ट 6 years नॉट वर्किंग, मतलब अभी 6 साल के पहले आपको 8 साल का एक्सपीरियंस था या 6 साल के पहले 2 साल वाला एक्सपीरियंस था और 6 साल गिन के आप 8 साल बता रहे हो? रेज्यूमे अपडेट करने का एक ही तरीका है, मैंने ऐड कर दिया है। कंप्यूटर स्किल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको डिपेंड करता है आप क्या क्या ऐड करोगे। एमएस ऑफिस है या आउटलुक है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग के भी सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको यू हैव टू बी वेरी क्लियर पूजा। वर्क इन अ शॉप, लेकिन व्हाट डिड यू वर्क एज, आपको अपनी डेजिग्नेशन ऐड करनी होगी। शिवम, आप जितनी ज्यादा चीजें ऐड करोगे ना, उतने ज्यादा आप इनवाइट कर रहे हो एचआर को इतने क्वेश्चंस पूछने के लिए। सो मेक श्योर कि आप जो चीजें ऐड कर रहे हो वो क्रिस्प एंड क्लियर ही हो। हाँ, फ्रीलांस भी ऐड कर सकते हो। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे नहीं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे होता है, जो आपने सबसे पहले किया, रिसेंटली काम किया, वो आपको सबसे ऊपर ऐड करना है। आफ्टर ग्रेजुएशन आई डोंट डू एनीथिंग फॉर 2 years, व्हाट कैन आई डू? अब तो आप 2 साल पिछले पीछे नहीं जा सकते हो, लेकिन अब आप कुछ अच्छा कर सकते हो, जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो।
वॉलेंटरी एक्सपीरियंस आप वॉलेंटियरिंग में ही डाल सकते हो तन्मय। शिवम मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। इट विल नॉट लुक स्टिकी, आपको उसको देखना है मेघा कि किस तरीके से वो अच्छा लगेगा। Yes, Mamta, I can see your message. If I have not any training or project related to job description, what should I write in work experience? आपको देखना होगा आरुषि के आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हो रहा है या नहीं, आपकी समरी भी, वरना देयर इज नो पॉइंट। Where to make resume and cover letter? Word, MS Word. हाँ, यू कैन टेल दैट हरिनी कि आपने क्या किया है 4 years तक, वरना आप उसे यू नो समाज सेवा सोशल सर्विसेज के हिसाब से भी बता सकते हो। क्रोनोलॉजिकल रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। यू हैव टू राइट द रीसेंट मोस्ट थिंग्स ऑन द टॉप और फिर उसके बाद आपको चीजें ऐड करनी है। हाँ, यू कैन राइट यू आर परसुइंग डिग्री, और आपको ये भी लिखना है कि आप कब तक ग्रेजुएट हो जाओगे। स्पीकिंग कोर्स क्या है वो मेंशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। पूजा आपका मैसेज नहीं आया, मैं क्या रिप्लाई करूँ? अचीवमेंट कुछ भी डाले तो उसका सर्टिफिकेट भी देखते हैं। हाँ देखो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रूफ मांगेंगे, और प्रूफ भी नहीं है तो आपसे वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाए तो इट्स अ ट्रबल, यू आर इनवाइटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ, ब्लंडर हो जाएगा। एक्सेलेंट टैली का कोर्स कर रहे हो तो आप लिख सकते हो इस समय स्टार्ट किया था, अभी तक प्रेजेंट तक कर रहे हो। एक्सपीरियंस लेटर ले ही लेना जिस भी कंपनी को आप छोड़ रहे हो, एक बिना एक्सपीरियंस लेटर के कोई मतलब नहीं है कंपनी छोड़ने का। फ्रेशर को कोई नॉलेज नहीं होता तो उससे क्या पूछेंगे एचआर? नरेन, हर किसी को कुछ ना कुछ नॉलेज तो होता ही है, राइट? एक आध बार आप इंटरव्यू दोगे तो आपको ये वाला पॉइंट समझ आ जाएगा। For certifications, which course is the best? It depends upon your interest, Soumya. Sorry, Sumaya. It completely depends on the interest. अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करो। अगर आपको डेटा एनालिसिस में या प्रोग्राम मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप उस चीज के कोर्सेज करेंगे, राइट? कोर्सेरा, स्वयं, यूडेमी, काफी सारे ऐसे यू नो एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप कोर्सेज कर सकते हो कम रेट्स में या कभी कभी फ्री में भी। गूगल भी काफी सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। बैंकिंग कोर्स अगर वो आपकी जॉब से रिलेवेंट है तो आप डालेंगे, वरना नहीं। हाँ, जो रेज्यूमे का सीक्वेंस मैंने बताया वैसे ही होगा ऋतु। सुमैया जस्ट मैंने आंसर किया, बार बार सेम क्वेश्चन डाल के स्पैम मत करो। एजुकेशन में बीएड मेंशन कर सकते हो, जो जो आपने पढ़ा है वो सब कुछ मेंशन कर सकते हो। प्रियंका, एक जैसा मैसेज बार बार मत डालो। वर्क एट एन पेमेंट बैंक फॉर अकाउंट्स मैनेजमेंट, ये है क्या? क्या कहना चाह रहे हो आप मनीषा? यस पूजा, आई कैन रीड योर मैसेज, प्लीज टाइप योर क्वेश्चन। एक्सपीरियंस में क्या मेंशन करना है? जो आपका एक्सपीरियंस है वही आपको मेंशन करना है। जीमेल पे मत भेजना, मेरे को लिंक्डइन पर भेजना। यस यू कैन। I think we covered maximum doubts, Purvi. I think. या यस यस Okay, यस वी हैव। okay. And मैं बताना चाहता हूँ सभी को, ये जो PDF अभी जो पूर्वी ने शेयर किया था आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर पे, ये आपको इसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग जब अभी अवेलेबल होगी 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर, उसी के साथ ये PDF भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो।
और पूर्वी ने अपना एक लिंक्डइन आईडी पे अपना शेयर किया, वहां से आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो आई थिंक सब डाउट्स तो डन हो चुके हैं और वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एंड वंस अगेन मैं पूर्वी बहुत थैंक यू करता हूँ, आप स्पेशल आए हैं और आपने मतलब ऑडियंस को काफी सारी नॉलेजेबल चीजें बताई, क्योंकि रिज्यूम से रिलेटेड ना इतने डीप चीजें नहीं बताते हैं कोई। तो ये आपने काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई जिससे कि डेफिनेटली इनको काफी हेल्प मिलेगी इनके सीवी शॉर्टलिस्ट होने में। सो वंस अगेन मैं भी आपका बहुत थैंक यू करता हूँ इसके लिए। I'm thankful to you as well to take me here and help me spread this knowledge along the students. So yes, it's going on and on. अभी चल रहा है and I just want to see all of you getting into good jobs. काफी सारी hiring हो रही है अभी. We have just begun into a new financial year. बस 15 दिन हुए हैं इस financial year को शुरू हुए. So yes, बहुत सारी opportunities हैं. बस ढूंढते रहो, struggle करते रहो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. Do you want to add anything, Akash? No. We can end this meeting now. Okay. So let's wind this up. It was lovely meeting all of you guys, and I'm sure I have cleared lots of doubts. फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो पीडीएफ जो आपको मिलेगी उसमें लास्ट लास्ट वाला जो पेज है उसमें मेरा लिंक्डइन आईडी शेयर किया हुआ है. यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी ऑन लिंक्डइन. ऑलराइट, एंड let's catch up soon. Akash, if there's anything else that I can help you with, No. we'll meet for can end. LinkedIn upskilling. Definitely we'll be meeting up for LinkedIn upskilling. So yes, Yeah. let's catch up for that. Yes, now you can end this class. All right. Okay, thank you all of you. Thank you for being here. Bye. Good night.